معزز حاضرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصعب صاحب سے میرے بڑے گہرے مراسم تھے، اور جس طرح سے ان کی شفقت اور محبت ساتھ رہتی تھی، ہر لمحے جب بھی وہ ملتے تھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے کہ ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں۔ انڈین اسلامک کلچر سینٹر میں جب انہوں نے اس کا چارج لیا، اس سے پہلے بہت سارے مراحل تھے، اور میں اس لیے ان کی قدر کرتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا۔ سعودیہ ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، یہاں تک کہ یمن ہو گیا، جارڈن ہو گیا، کئی جگہ، اور خاص طور پہ جو ملک ہے غدافی صاحب والا، کیا نام ہے اس کا، تو وہاں بھی میں ان کے ساتھ گیا۔ وہ اتنی محنت کرتے تھے پیسہ لینے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اور جو خاص ان کی مدد کی گئی، ہماری مدد کی گئی، وہ یو اے ای کے ہمارے جو عبدالرحمٰن صاحب ہیں، وہ انتقال کر گئے، انہوں نے بہت مدد کی، بلکہ انہوں نے انڈین اسلامک کلچر سینٹر کے اندر ایک دفتر بھی بنا دیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اس کو میں کمپلیٹ کراؤں گا، اور انہوں نے اپنی پوری محنت بھی کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ جہاں بیٹھے ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سر، آپ کی تعریف جتنی کی جائے، کیونکہ ہمیں احساس اسی وقت ہوتا ہے آدمی کا جب وہ انتقال کر جائے، دنیا چھوڑ کے جب چلے جاتا ہے آدمی، تب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی وہ ہیرا تھا، اس سے پہلے ہم لوگ گردانتے نہیں ہیں۔ موسیٰ صاحب کو جب اس کا چارج ملا، انڈین اسلامک کلچر سینٹر کا سیکریٹری تھے وہ اسٹیل کے اندر، ابھی ذکر ہوا ان کا کہ بہت ساری پوزیشن پہ وہ رہ چکے، جے این کے اندر رہے وہ، اور جے این کے اندر اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے، اور جو بھی کام کرتے تھے بڑی محنت سے کرتے تھے۔ پہلی بار جب انہوں نے مجھے بلایا اسٹیل اتھارٹی کے اندر، تو میرے سے انہوں نے کئی اہم باتیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے انڈین اسلامک کلچر سینٹر سے میں شروع سے ہی جڑا ہوا ہوں، جب اس کے فاؤنڈر ممبرس کے ساتھ ساتھ میں بھی تھا، تو لے کے جاتے تھے، جیسے ذکر ہوا 7-8 کروڑ روپے انہوں نے جمع کیا، لیکن اس کے بعد وہ تھک گئے۔ کئی لوگوں نے وعدے کیے، کئی لوگوں سے ان سے بات ہوئی، اسلامی سینٹر کو کمپلیٹ کرنا ہے، پیسہ دے دیجیے گا، لیکن ایک گیپ آیا قریب 8 سال کا، اور پھر انہوں نے مجھے بلایا، بلکہ ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے اس وقت کے ہمارے اسٹارٹرس، وہ سب نے میرے سے میٹنگ کی، اور میرے سے مجھے حکم دیا کہ انڈین اسلامک کلچر سینٹر کی باغ سنبھالوں۔ اس کے بعد پھر ان کی شفقت محبت رہی میرے ساتھ، اور چپے چپے میری مدد کرتے رہے، مجھے گائیڈ کرتے رہے، مجھے بتاتے رہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے، جو ان کا ڈریم تھا یہ پروجیکٹ بھی۔ میں تو اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے پورا کیا، وہ تو سب اللہ تعالیٰ نے پورا کرایا، لیکن پیچھے سے ان کی بیکنگ مجھے ہمیشہ ملتی رہی۔ کئی بار میرے دفتر میں بھی آ گئے وہ، ہمارے جو سیکریٹری تھے عارف صاحب اس وقت، ان کا بہت بڑا رول رہا، ان کو سلمان خورشید صاحب ان کے والد ہو گئے، شفیع قریشی صاحب ہو گئے، طیب حسین صاحب ہو گئے، شفیع صاحب ہو گئے، ان سب کا ایک بہت اہم رول رہا ہے۔ اور جو اس وقت زمین حاصل کرنے کے اندر جسٹس ہدایت اللہ صاحب نے جو وائس پریزیڈنٹ رہے انڈیا کے، انہوں نے بڑی مدد کی۔ تو یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے انڈین اسلامک کلچر سینٹر کے بارے میں۔ پھر کیا آتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، چمن میں دید اگر پیدا، ان کی وہی حیثیت تھی کہ وہ چلے گئے، لیکن اس طرح کی نوعیت کے، اس طرح کی شخصیت کے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ہم ان کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کی جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا کرے، اور ہم ان کے خاندان کو بھی اپنی طرف سے میسیج بھیجنا چاہتے ہیں کہ انڈین اسلامک کلچر سینٹر، اس کے سارے ممبران جو ہیں ان کی غم اور دکھ اور درد میں شامل ہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے جو ہم ان کو شردھانجلی پیش کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لا کے ان کو کم سے کم خراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز لائف ممبران انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر، ڈسٹنگوش گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہم لوگ اس وقت ایک بہت صدمے کا لمحہ ہے کہ جب موسیٰ رضا صاحب کو یاد کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ موسیٰ رضا صاحب کا تعلق ہم سبھی لوگوں سے تھا، اور خاص طور سے صفدر بھائی سے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ آئی ٹی پی او میں رہے، ان سے بہت ہی دیرینہ تعلقات ان کے تھے، اور وہ بعد میں بھی ہمیشہ مسلسل رابطے میں رہتے تھے، اور سینٹر کے حالات کے بارے میں بھی ان کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی وہ دہلی آتے تھے تو یہیں ٹھہرتے تھے،
جبکہ ان کے پاس ٹھہرنے کی اور جگہیں بھی ہوتی تھیں اور بہت سے آپشنس ہوتے تھے، بٹ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں ٹھہروں گا جس سے کہ یہاں ممبران سے ملاقات ہو سکے، اور سبھی کو بلایا کرتے تھے کہ بھی میں آیا ہوا ہوں 2-3 دن کے لیے دہلی میں، اور آپ لوگ آئیے اور ملیے، اور ہمیشہ حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا کام چل رہا ہے۔ میرے سے بھی بہت بار انٹریکشن ہوا ان کا، دہلی میں بھی ہوا، چنئی میں ان کے گھر پر بھی ہوا، 2 مرتبہ میں ان کے گھر پر چنئی بھی گیا، میں چنئی گیا ہوا تھا، میں نے انہیں فون کیا اور فوراً انہوں نے کہا کہ آپ کو لنچ پہ آنا ہوگا، آپ بنا ملے ہوئے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی محبت تھی، اور ہمیشہ ان کو لگاؤ تھا اس سینٹر سے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ انہوں نے جو کام کیا، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ان کا کنٹریبیوشن IICC کے لیے ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ جہاں تک ان کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ترقی کی، اور انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس میں جو بھی پاسبل عہدے ہو سکتے تھے، ہائیسٹ، ہی واز سیکریٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا، دین ہی واز چیف سیکریٹری ٹو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جہاں وہ ڈیپوٹیشن پہ گئے تھے جبکہ وہ کاڈر ان کا گجرات تھا۔ پھر اس کے بعد جب یو پی میں ایک بار پریسیڈنٹ رول امپوز ہوا اور پروبیبلی رمیش بھنڈاری صاحب گورنر تھے، تو ہی واز آلسو ایڈوائزر ٹو گورنر لوکنگ آفٹر لا اینڈ آرڈر، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ پوزیشن، تو ہی واز جسٹ لائک اے ہوم منسٹر آف یو پی ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو ان کو اتنے مواقع ملے جس کا انہوں نے بہت اچھا استعمال کیا، کمیونٹی کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی۔ اور نہ صرف وہ ایک بیوروکریٹ تھے، سرپرائزنگ یہ ہے کہ ہی واز اے رائٹر، ہی واز این آتھر، ہی واز اے پوئٹ، ہی واز اے فلاسفر۔ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی، اور وہ کتابیں ابھی بھی ہم لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں۔ فلینتھراپسٹ تھے، یہاں کام کیا، پھر اس کے بعد چنئی میں صدرن انڈیا ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین رہے ابھی تک، اور بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، اور خاص طور سے ایک ویمنس کالج چنئی میں ہے جس میں ہزاروں لڑکیاں زیر تعلیم ہیں، جو ان کی کاوشوں سے شروع ہوا، اور اس میں ہمیشہ سے انہوں نے اس کا مینجمنٹ سنبھالا۔ میں اس موقع پہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، اور ان کے خاندان کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی، اور ہم سبھی لوگوں کو جو انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر سے وابستہ ہیں اس صدمے کو برداشت کرنے کی قوت دیں، آمین۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز لائف ممبران انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر، ڈسٹنگوش گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہم لوگ اس وقت ایک بہت صدمے کا لمحہ ہے کہ جب موسیٰ رضا صاحب کو یاد کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ موسیٰ رضا صاحب کا تعلق ہم سبھی لوگوں سے تھا، اور خاص طور سے صفدر بھائی سے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ITPO میں رہے، ان سے بہت ہی دیرینہ تعلقات ان کے تھے، اور وہ بعد میں بھی ہمیشہ مسلسل رابطے میں رہتے تھے، اور سینٹر کے حالات کے بارے میں بھی ان کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی وہ دہلی آتے تھے تو یہیں ٹھہرتے تھے، جبکہ ان کے پاس ٹھہرنے کی اور جگہیں بھی ہوتی تھیں اور بہت سے آپشنس ہوتے تھے، بٹ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں ٹھہروں گا جس سے کہ یہاں ممبران سے ملاقات ہو سکے، اور سبھی کو بلایا کرتے تھے کہ بھی میں آیا ہوا ہوں 2-3 دن کے لیے دہلی میں، اور آپ لوگ آئیے اور ملیے، اور ہمیشہ حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا کام چل رہا ہے۔ میرے سے بھی بہت بار انٹریکشن ہوا ان کا، دہلی میں بھی ہوا، چنئی میں ان کے گھر پر بھی ہوا، 2 مرتبہ میں ان کے گھر پر چنئی بھی گیا، میں چنئی گیا ہوا تھا، میں نے انہیں فون کیا اور فوراً انہوں نے کہا کہ آپ کو لنچ پہ آنا ہوگا، آپ بنا ملے ہوئے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی محبت تھی، اور ہمیشہ ان کو لگاؤ تھا اس سینٹر سے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ انہوں نے جو کام کیا، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ان کا کنٹریبیوشن IICC کے لیے ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ جہاں تک ان کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ترقی کی، اور انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس میں جو بھی پاسبل عہدے ہو سکتے تھے، ہائیسٹ، ہی واز سیکریٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا،
then he was chief secretary to government of Jammu and Kashmir, जहाँ वो डेपुटेशन पे गए थे, जबकि वो काडर उनका गुजरात था. फिर उसके बाद जब यूपी में एक बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ और प्रोबेबली रमेश भंडारी साहब गवर्नर थे, तो ही वॉज ऑल्सो एडवाइजर टू गवर्नर लुकिंग आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर. That was very important position. तो he was just like a home minister of UP at that time. तो उनको इतने मौके मिले जिसका उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, कम्युनिटी के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी. और ना सिर्फ वो एक ब्यूरोक्रेट थे, सरप्राइजिंग ये है कि ही वॉज ए राइटर, ही वॉज एन ऑथर, ही वॉज ए पोएट, ही वॉज ए फिलोसोफर. बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी और वो किताबें अभी भी हम लोगों को गाइड करती हैं. फिलैंथ्रोपिस्ट थे, यहाँ काम किया, फिर उसके बाद चेन्नई में सदर्न इंडिया एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन रहे अभी तक. और बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ख़ासतौर से एक वीमेंस कॉलेज चेन्नई में है जिसमें हज़ारों लड़कियाँ ज़ेर तालीम हैं, जो उनकी काविशों से शुरू हुआ और उसमें हमेशा से उन्होंने उसका मैनेजमेंट संभाला. मैं इस मौके पे उनको अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके ख़ानदान को इस सदमे को बर्दाश्त करने की, और हम सभी लोगों को जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से वाबस्ता हैं, इस सदमे को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत दें. आमीन. शुक्रिया. जनाब मूसा रज़ा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जाएगा. जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक़ है तो वो मेरे सर्विस के साथ ही थे, कॉलीग कहा जा सकता है. हालांकि हमने एक साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन कहीं पोस्टिंग एक साथ की नहीं हुई थी, लेकिन उनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी. इसलिए कि जब मैं वज़ीर आज़म के दफ्तर में था, उस वक्त इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी और उनके बाद राजीव, तो ये थे गुजरात काडर, एंड ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स ऑफ द गुजरात काडर. इनके दयानतदारी, इनकी काबिलियत की वजह से, और इसीलिए फिर उनको यहाँ लाया गया. और जब मैं तब तक तो मैं वज़ीर आज़म के दफ्तर में था नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर के साथ था, जब हालात कश्मीर के बहुत बिगड़ने लगे एंड ऑफ 80s, इस थोड़ा इलेक्शन से पहले 89 का जो इलेक्शन था, तो मैंने सिफारिश की थी वज़ीर आज़म से, जो उस वक्त राजीव गांधी थे, कि वो इन्हें लाएं. और कल ही फ़ारूक साहब मुझे फ़ोन कर रहे थे, उनके पास इनका नंबर नहीं था. वो चाहते थे कि वो भी अपनी खराज इज़्ज़त पेश करें. इसका मतलब है कि उन्होंने कश्मीर में एक बहुत लंबा असर छोड़ा और आज तक याद है. हालांकि जैसे कहा गया, वो कश्मीर काडर के लिए थे, लेकिन एक बहुत मुसीबत के वक्त में वो वहाँ तैनात हुए. उसके बाद भी मेरे ताल्लुकात हमेशा उनसे रहे. मेरी खुशकिस्मती ये नहीं थी कि मैं उनके घर जा सका चेन्नई में, लेकिन फ़ोन पे, और जब उनको पद्म भूषण यहाँ मिला था, तो उन्होंने मुझे भी दावत दी थी कि मैं आके उस जश्न में शामिल हूँ, शरीक हूँ. उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो एक बहुत अजीम शख्सियत थे. और ये सिर्फ नहीं क्योंकि वो IAS थे, तो वो तो मेरी तरफ से घमंडी होगा अगर कहेंगे IAS में आने से कोई बड़ी अजमत हासिल हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमेशा वो इतने डेडिकेटेड, इतने कमिटेड रहे. जैसे वो उनका तस्वुर था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ख्वाब हम सब के लिए छोड़ा है, जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं. इन ख्यालात से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि the word that we use
for passing for death among Muslims is इंतकाल. इंतकाल का मतलब तो आप समझते हैं, एक जिंदगी से निकल के एक दूसरी जिंदगी में इंतकाल करना, from life to eternity. और क्योंकि मुझे यकीन है हमारे लिए जिंदगी तो एक आजमाइश है, उस आजमाइश में मूसा रजा साहब पूरी तरह से कामयाब रहे. मुझे यकीन है कि वो अब जहाँ हैं वो हमें देख रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं जो उन्होंने रास्ता दिखाया क्या हम उस पर चल रहे हैं. इन्नल्लाह व इलैहि राजिऊन. शुक्रिया. नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप तमाम हज़रात, ख़वातीन हज़रात की तरह मैं भी यहाँ हाज़िर हुआ हूँ कि मूसा रज़ा साहब को अपना ख़िराज अक़ीदत पेश करूँ. उनकी जो खिदमात हैं जिसका ज़िक्र यहाँ किया जा रहा है उसका एतराफ़ किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका इआदा किया जाए, उसका वायदा किया जाए. कुछ हमारे पीछे स्पीकर्स ने उनकी जो बातें बताई हैं, उनका ख्वाब, उनका मिशन, उनका विज़न, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकें, वजाहत भाई ने बताई हैं, कैसे आगे बढ़ा सकें, उसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं. रिवायतन तो हम किसी भी कंडोलेंस मीटिंग में उस जाने वाले शख्स की याद करते हैं, अच्छी बातें याद करते हैं और दुआ करते हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए. लेकिन मैं समझता हूँ आप सब ख़वातीन हज़रात इस बात से इत्तेफ़ाक़ करेंगे कि मूसा रज़ा साहब जैसी शख्सियतों को अगर हम सही ख़िराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनकी याद को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसका एक वाहिद तरीक़ा यही होगा कि उनके जो उसूल थे, उनके जो बताए हुए रास्ते थे, जो उनके अमल दरामद करने वाले तरीक़े थे, उन पर हम लोग चलें और आगे बढ़ें और मुल्क और कौम की जो उन्होंने खिदमत की है उसको एक रोल मॉडल बना के उस पर अमल करने की कोशिश करें. तो यही हम सबको मैं समझता हूँ यहाँ एक वायदा और एक अहद करके इस हॉल से बाहर जाना होगा. ख़वातीन हज़रात, मूसा रज़ा साहब का ताल्लुक़ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से है, जहाँ हम बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं. उसका तो ज़िक्र है, होना भी चाहिए, ज़रूर होना चाहिए. लेकिन मूसा रज़ा साहब की शख्सियत इस्लामिक सेंटर से ज़्यादा वसी तर शख्सियत थी. जैसे कि अबरार ने भी बताया कि वो एक, मैं तो उनको जब मिला था तो सेक्रेटरी स्टील थे और मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में डायरेक्टर फाइनेंस था. मुझे मालूम हुआ कि मूसा रज़ा साहब की यहाँ पोस्टिंग हुई उद्योग भवन में, तो मैं उद्योग भवन में उनसे टाइम लेकर उनसे मिलने गया और वो दिन था और उसके बाद से वो ताल्लुकात में इजाफा ही होता चला गया. मैं उनके साथ जिस मोड़ पे सबसे ज़्यादा करीब आया वो एक उनका ख्वाब था जिसमें सैयद हामिद साहब भी शामिल थे मरहूम, और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाने का प्रोजेक्ट बनाया था. उससे मैं भी वाबस्ता हो गया. हामिद साहब का हुक्म था, मूसा रज़ा साहब का हुक्म था, वाबस्ता हो गया एक जूनियर ऑफिसर के तौर पे. और बड़े लोग तो यही थे, हामिद साहब और मूसा रज़ा साहब. बल्कि हामिद साहब उस ज़माने में कहते थे कि जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा होता है, ऐसे ही मूसा रज़ा एंड मूसा रज़ा होता है, मूसा एंड मूसा होता है. हर काम में हर जगह उनके बगैर कोई काम ही नहीं हो पाता है अपना करके. तो उस प्रोजेक्ट पर उनकी बहुत तवज्जो थी और उन्होंने बहुत कोशिश की थी. इस तरीके से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए उन्होंने कोशिश करी. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट नहीं आगे बढ़ पाया कि बहुत सारी वजूहत हैं, उस पर मैं भी नहीं जाऊँगा. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तालीम के मैदान में साइंस को और साइंस टेक्नोलॉजी को वो इस हद तक प्रमोट करना चाहते थे, ख़ास तौर से मुस्लिम कौम में. और उस वक्त जब मेरी उनसे गुफ्तगू होती थी, मैं ख़वातीन हज़रात आपको बताना चाहूँगा, वो दौर था जब हिंदुस्तान में कंप्यूटराइजेशन और कंप्यूटर्स का
इंट्रोडक्शन हो रहा था, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो मूसा साहब ये कहते थे, हामिद साहब भी कहते थे कि भाई हमारी कौम जो है वो आईटी की बस मिस ना कर जाए, वी शुड नॉट मिस द बस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके लिए हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस भी की थी जामिया हमदर्द ऑडिटोरियम में, और इस टॉपिक को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए उन्होंने फिर एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, इसका नाम था सरसेर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, उसका एब्रीवेशन बनाया गया सिमटेक, और उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज को लॉन्च किया गया। वो बड़ी मोटी रिपोर्ट थी, मेरे पास आज भी कहीं होगी कि यूनिवर्सिटी कायम करने की। मैं समझता हूँ कि ये मैंने इसलिए जिक्र किया कि जैसे हमने भी उनका इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में बातचीत करी, मैं समझता हूँ उनके उस विजन को भी कहीं आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एक ऐसी मेयारी यूनिवर्सिटी, एक मेयारी तालीमी इदारा हम कायम करें, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया जाए, और उससे बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के हमारे मिलत के कौम के बच्चे आगे बढ़ें। समझता हूँ उनका एक ड्रीम है, इसको हम सबको अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने उनमें, बारह एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत अच्छे थे, उसका तो हमारे वजात हबीबुल्लाह साहब ने जिक्र करी है, उसका तो कोई हमें विटनेस या शहादत चाहिए ही नहीं। चीफ सेक्रेटरी रहे, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे, वगैरह वगैरह, एडवाइजर टू गवर्नर रहे, लेकिन उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे, साहिब कलाम थे, उनका कलाम छपा हुआ है। उन्होंने जब चेन्नई में उनके घर गया तो अपनी किताब उर्दू कलाम लिया। तो आप सब जानते होंगे तमिलनाडु से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन फ़ारसी, उर्दू और अरबी पे भी उनको जो अबूर था, मैं समझता हूँ कि अच्छे से अच्छे फ़ारसी के माहिरीन को अबूर नहीं होगा। और उसी संबंध में, उसी कॉन्टेक्स्ट में उनको इस्लामिक लॉ के ऊपर बड़ा अबूर था, इस्लामिक पर्सनल लॉ के ऊपर बड़ा अबूर था। अगर आपने कभी उनसे गुफ्तगू की है इस्लामिक लॉ के ऊपर, या इस्लामिक लॉ के जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जूरिस्प्रूडेंस है, स्कूल्स हैं, तो मूसा साहब की इल्मियत का आपको अंदाज़ा हो सकता है। मैं समझता हूँ बहुत से लोग ऐसे हुए यहाँ पे जिन्होंने उनसे इस टॉपिक गुफ्तगू, मेरे एक मुसलमान के साथ सफ़र रहा दिल्ली से अलीगढ़, 2-2.5 घंटे का सफ़र था उनके साथ मेरा। तो इस टॉपिक पता नहीं किस तरीके से निकल के आया कि हलाल कंसेप्ट जो है इस्लाम में, हलाल करना, ज़िबा करना। मूसा साहब ने उस 2.5 घंटे में मुझको ये समझाया पूरी देर तक कि इस्लामिक लॉ में ये कैसे कंसेप्ट डेवलप हुआ, प्री इस्लामिक डेज में कैसे था, अरब में क्या था, तरीका था, उसके बाद कैसे डेवलप हुआ और आज कैसे होता है। तो एक मुद्दा सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर 2.5 घंटे तक उनकी इल्मियत का मुझे अंदाज़ा हुआ। ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जिसके ऊपर उनके ऊपर हम लोग करते थे। इत्तेफाक की बात थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें कुछ लोग हैं, उसमें मैं भी हूँ, मूसा साहब मरहूम भी थे, उसमें मेंबर थे, और अक्सर उसमें वो लिखते रहते थे, बहुत से उन्वानों के ऊपर लिखते थे, अच्छी बातें लिखते थे अपने करके। तो ऐसी शख्सियत थी जो इल्म में, अदब में, इस्लामियात में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑडिटरी में, कोई मैदान जिसमें उन्होंने अपना अमल दरामद किया, आगे बढ़े, उस पर आला मुकाम पर पहुँचे। तो वो रोल मॉडल हम लोग के लिए हैं। मुझे अफसोस है, किसी ने कहा कि उनकी किताबें यहाँ इस्लामिक सेंटर में नहीं आ पाई। मैंने भी उनकी लाइब्रेरी देखी है, और वो बहुत अफसोस करते थे कि मेरे पास लाइब्रेरी का क्या होगा, तो उनको नहीं उम्मीद थी कि उनकी फैमिली है उसको लाइब्रेरी को। तो मैं दरख्वास्त करूँगा इस्लामिक सेंटर के ज़िम्मेदारान से और आने वाले ज़िम्मेदारान से कि उनकी किताबों को यहाँ जमा करें। SIET जो साउथ इंडियन एजुकेशन ट्रस्ट है, जस्टिस बशीर अहमद साहब उनकी फैमिली से है, मूसा साहब की फैमिली के थे, उन्होंने कायम किया था न्यू कॉलेज वहाँ पे, उसके वो चेयरमैन थे। वो उसको भी दे सकते हैं, उसकी लाइब्रेरी को भी दे सकते हैं, उसका कॉलेज है, उसमें मेरे जाने का इत्तेफाक रहा है कई बार, उसको भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ आ जाएगा तो यकीनन एक बहुत बेशकीमत इजाफा होगा हमारी लाइब्रेरी में, और मैं समझता हूँ इस मौके को फ़ायदा उठाना चाहिए, ये बड़ा काम होगा अपने करके। तो ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे ख़यालात हैं, बहुत सारे जज्बात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं जहन में चले आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने एक अल्फाज में अगर कहूँ, एक जुमले में कहूँ, एक बहुत बड़ा शख्स खो दिया जिसने मिल्लत के, कौम की, मुल्क की बहुत खिदमत करी है अपने करके।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं उनसे मिला था पहली मरतबा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी स्टील थे और गुजरात कैडर का IAS ऑफिसर थे, लेकिन उस वक्त भी जो उनसे गुफ्तगू हुई तो घूम फिर के वो उनको फिक्र रहती थी कि कौम के बच्चे क्या कर रहे हैं, मिलत के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी तालीम में कैसे इजाफा किया सकता है, उनके बयान में कैसे इजाफा किया जाता है, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो बस करने का मतलब ये है कि बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अबरार साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें कहने को हैं, हम उनको याद भी करेंगे, यकीनत भी पेश करेंगे, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे और कम से कम इसलिए इस्लामिक कल्चर सेंटर कमिट करें अपने आप को कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके विजन के ऊपर हम अमल की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सबके साथ मैं भी यकीनत पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला सला मुकाम अता फरमाए और उनके ख़ानदान को सब्र जबी अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबी करीम। बहुत शुक्रिया अबरार भाई। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये बहुत दुख की घड़ी है। एक अजीम शख्सियत न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बड़े सगीर में, पूरी दुनिया में जिसका नाम था, जिसने न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनको जानते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर होने के अलावा जो उनमें एक क्वालिटी थी, सर्विंग द ह्यूमैनिटी, वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन, लिफ्टिंग द पीपल फ्रॉम डाउन एंड गिविंग देम ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, वो जो उनका एक मंत्र था और उनके जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं चेन्नई में, वो अपने आप में उसकी एक मिसाल है। मूसा रज़ा साहब का कंट्रीब्यूशन इस्लामिक सेंटर में कौन भूल सकता है। वो जब यहाँ आए तो उन्होंने आते ही काम शुरू किया और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ से उनको मदद मिल सकती थी, वहाँ उन्होंने अप्रोच नहीं किया जाके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या कोई और मदद हो वो लेके ना आए हो। हिंदुस्तान में जितने लोग थे जो यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, वो पर्सनली उनसे मिले भी जाके और जो मदद वहाँ से हासिल करना था वो मदद भी वहाँ लेके आए। और इतना बड़ा सेंटर दिल्ली के हार्ट में उन्होंने बना के खड़ा किया। उसके बाद सिराज कुरैशी साहब का आना हुआ तो उस अधूरे काम को सिराज कुरैशी साहब ने बखूबी अंजाम दिया और ये जो अजीम इमारत आपको नज़र आती है, ये मूसा रज़ा साहब की इनिशियल मेहनत और उनकी अथक मेहनत से सामने आई। उसके बाद सिराज साहब ने इसको मुकम्मल किया। मेरा उनके साथ ताल्लुक़ 2013 में हुआ। मैं उनसे 2013 में मिला। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में होता था। रहमान खान साहब प्राइवेट मिनिस्टर थे, मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था। तो मूसा रज़ा साहब को सबसे पहले हमने वक्फ अमेंडमेंट जो हुआ 2013, उस पर कंसल्टेशन हमने शुरू किया। उन्होंने उसमें बहुत किरदार उनका था। सच्चर कमेटी की इम्प्लीमेंटेशन वाली जो रिपोर्ट बनी, उनमें बहुत बड़ा उनका योगदान था। और जब नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनने लगा तो मूसा रज़ा साहब के साथ साथ मुझे भी मौका मिला उसके फाउंडर डायरेक्टर होने का और मैं उनके साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड में करीब 3-3.5 साल काम किया। उस ज़माने में जो नुमाया काम हुए उसमें से एक बड़ा काम ये कि नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने NBCC के साथ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया, जिसमें मूसा रज़ा साहब का बहुत अहम किरदार था। रहमान साहब का ये ख्वाब था कि नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी बॉडी बनाई जाए जो पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कर सके। तो मुझे फ़ख्र है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और शरिया कंप्लाइंट ऐसे डेवलपमेंटल मॉडल बनाए उन्होंने और मैं उनके साथ था। तो मुझे बहुत सीखने का मौका मिला कि 30 साल की लीज में हम वक्त की प्रॉपर्टीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं जो शरिया कंप्लाइंट भी हो और उससे मैक्सिमम रिटर्न हासिल किया जाए जो कौम और मिल्लत की खिदमत में काम आए। बहुत ज़्यादा समय नहीं है बोलने का। अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून दे, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी जो फैमिली है उनको सब्र जमील अता फरमाए। और एक शेर उनकी शख्सियत के लिए मैं कहना चाहूँगा, सूरज हूँ
जिन